आगे बढ़ने से पहले क्या लग रहा है यमन, क्या होगा एडवांटेज? पिछले हफ्ते से so many things happen for the advantage. लास्ट टाइम जो रिले हुआ जिसमें यामोन जीती है, वो रिले वो डिजर्व नहीं करती जीतना। हमने डिसीजन दिया है, आपको लगता है कि ये डिसीजन गलत है? पूरी रिस्पेक्ट है आपके डिसीजन की, बट हमको ऐसा लगता है उस रिले में शुभांकर भाई वो ज्यादा बेटर। I don't know ये अंबरधारा क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं। हम लोग एज अ वाइल्ड कार्ड आए तो हमको पता चला यामोन ने बोला ऐसे कि ये लोग तो ओरिजिनल भी नहीं है। यामोन 10 साल से ट्रेनिंग कर रही है, एफ्रो उसने सीखा है। कुल मिला के आखिरी में एक वही चीज निकलती कि एक एफ्रो डांसर जैसी ही दिखती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके घर खुद के शीशे के हैं तो आप दूसरे घर पत्थर मत मारो। Trash talking is good, beef is good, until and unless it is not personal. I want to call out to them. I want to prove them. Yes, we accept. Let's go. Let's do. कॉल आउट की बात है तो भी आ जाओ स्टेज पे, दिखाते कौन कितना डिजर्विंग है। बोलती बंद करने के लिए बैटल तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं, लेट्स डू दिस। कॉल आउट करने वाला जो सीन है ना, ये सिर्फ अंडरग्राउंड में देखा है यार। मतलब यहाँ पे मैं आई अप्रिशिएट हिप हॉप इंडिया के स्टेज को कि आर्टिस्ट हैव द फ्रीडम टू कॉल फकिंग आउट पीपल मैन। दिस इज क्रेजी, दिस इज रियल बैटलिंग मैन, दिस इज रियल बैटलिंग। That is also a part, an element of true blue hip hop. So I think that is super cool. हमें पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद कॉल आउट किया है। सो आ जाओ, मैदान में निकलो। Usually you see, you know, rappers call each other out and it always be men battling. And I respect Yamon to just stand up and say it's not about gender. It's not about male versus, you know, female. It's about who's the best dancer and who's going to bring Absolutely. it. So, mad respect. दोनों ही एक दूसरे को मतलब ऐसा है कि आज काटे की टक्कर देंगे। Yamon, go for it. I just hope you prove your point and you come back strong. कम्युनिटी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? अगर यमोन का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो ग्रीन, अगर अमन कुणाल का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो रेड। I think ladies should go first. हम लोग ने इसलिए रोका कि हमने कहा कि कॉल आउट उसने दिया तो स्टार्ट वही करेगी। ओके। On my right is last week advantage winner Yamon Lang. On my left is the dashing duo Aman and Kunal. Yeah. ये पहली बार मैं देख रही हूँ, ये कोई अलग रूप है यमोन का। अच्छा है, आई लाइक द अग्रेसिव साइड। कॉल आउट उन्हें किया है। Let's see. Let's see. Hit the floor in 3, 2, 1.
Is that kidding? Full on. ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਦ ਦਿਲ ਆਏਗੀਆਂ ਦਿਲ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ कम्युनिटी चेक, ग्रीन या रेड? आधे लोग के लिए टाई है। यस, Tie, tie. It's a tie. आधे से ज्यादा लोगों के लिए टाई है, सही है। तो ओनली 5 बैंड्स, बाकी सबके लिए टाई है। Aman and Kunal, you got like every detail, every pause. That is so difficult as a dancer to be able to understand the space in between the beats. Because a lot of people dance and they just don't understand that you have to place it. It can't just go there. And there was such a care from all three of you, actually, in the way that you were moving to the music. This was a really cool, like, slice of music. Is it Talvinder? I know his voice any day, anytime. Yeah, you guys really brought something different to stage, and the musicality was very visible, but it's very difficult to choose because they're very different styles. I understand why most of the community had the tie-up, because how do you choose between them? Sir, how do you choose? The decision is all yours, so we are waiting. सर जल्दी बताइए सर। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस पार्टी के विनर हैं अमन और कुणाल। But I love you, Yamon, no matter what. Yaman, you can see who deserves more. उसका ये कॉल आउट उसी पे भारी पड़ गया। The battle might be over, but the wars just started. यमन, ये जो आधे से ज्यादा लोगों ने टाई दिया है वो गलत नहीं दिया है, बहुत क्लोज दिया। Yes, of course, you guys were better in this battle. म्यूजिकलिटी बोलो या फिर आपके जितने भी स्किल्स हैं, वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फर्स्ट राउंड में आई थॉट शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सेकेंड राउंड दे टुक इट, वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग है ना। गुड लक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शुरू। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? सुना है ना आप लोगों ने, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, और जब शैतान खुद आया वो काम करने, तो आप सब क्यों कर रहे हो? ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आज मैं भी आया हूं। कौन?
कहाँ है हमारा शैतान? प्लीज वेलकम द गेम चेंजर। ये जिस शो में गए हैं उस शो की ट्रॉफी डोंगरी लेकर आए हैं। स्टैंड अप में आउटस्टैंडिंग है, जिसने हिप हॉप की जनता की दुआएं कमाई है, जिसकी कामयाबी के आगे नाकामयाबी कुछ भी नहीं है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मुनव्वर फारूकी। ये ब्रीफकेस में क्या लाए? एडवांटेज तो ये वीक किसी के पास है नहीं। जो एडवांटेज मिलना था वो मेरे को मिल गया लास्ट वीक। मैं फाइनल्स में आ गया, तो अब ब्रीफ केस क्यों आया वापस? आपको गैस करना है क्या है? पैसा पैसा। अच्छा गैस करो कितना पैसा है? 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 5 और 10 के बीच में। आप लोगों को लगता है इस ब्रीफ केस में पैसा है, बट यकीन मानो इस ब्रीफ केस में जो है वो पैसों से कई बढ़कर। ये कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? शुभांकर क्या लगता है? पहले गोल आया था, अब चौकोन में आया है। भाई सर्कल हो या स्क्वायर हो, बैंड तो बजने वाली है। सर हिस्ट्री इज रिपीटिंग आई गेस। तो लेट्स ओपन द बैग। बाकी के लोगों के चेहरे उड़े हुए, क्योंकि उन लोगों ने देखा पिछली बार जो भी उन्होंने भाईचारा निभाया, जो भी चीजें करी, उसमें उन लोग की वाट लगी थी। लेकिन इस बार बैंड हम बजाएंगे। वाइल्ड कार्ड्स। ये वाइल्ड कार्ड इस पावर को देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि एक बार इनके साथ गेम होने दो, तब जाके पता लगेगा इन्हें कि ये पावर कितना ज्यादा खराब है। ये जो कार्ड्स है इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे जजेस स्कोर करने वाले, हमारे लेजेंड्स स्कोर करने वाले, तो आप लोग पीछे क्यों रहोगे ना? तो आपको भी स्कोर करने की पावर मिलेगी। तो ये पावर है, लेकिन इसका एक ट्विस्ट है हल्का फुल्का। आपको 6 के 6 कार्ड्स मिलेंगे, सबको ईच। आपको स्कोर करते हुए किसी को 0 दे सकते हो, आप किसी को 1 दे सकते हो, किसी को 2, 5, 4, 3, राइट? बट आप एक कार्ड एक ही बार स्कोर कर सकते हो। आपने किसी कंटेस्टेंट को अगर एक कार्ड एक बार दे दिया है, आप उसे वापस नहीं ले सकते हो। आपके पास ये 6 ऑप्शंस है स्कोर करने के। आपको किसको क्या करना है वो आप देख लो, बट यू कांट होल्ड बैक एनी कार्ड विथ यू। कम्युनिटी के हाथ में पावर मत दो प्लीज। तुम कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, कोई ना कोई आएगा टिचकी मारने के लिए। जो यहाँ पे पहले से ही है वो अपने में से किसी को थर्ड फाइनलिस्ट बनाने के लिए गेम प्ले कर सकते हैं। हैक्टिक भैया है वो, तो उनका जो 5 पॉइंट है वो तो साफ हितेश भाई के पास जाने वाला है। भाईचारा तो ऑन टॉप रहेगा ही, उसमें से सबसे बड़ा नंबर है वो मेरे भाई को ही जा रहा है। It's gonna be tricky। थोड़ी सी बीटी दे दी यार कि ये क्यों है। स्कोरिंग हम भी करेंगे आउट ऑफ 10, आर्मी भी करेगा आउट ऑफ 10, और हमारी कम्युनिटी भी करेगी स्कोरिंग। क्या बात? यानी कि तीनों स्कोर्स मिला के जो सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारे लीडर बोर्ड पे होगा वो हमारा तीसरा फाइनलिस्ट होगा। मुनावर आइए। जजेस, नॉर्मल लोगों का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन हमारे अगले आर्टिस्ट का दिल धड़कता नहीं है, पॉपिंग करता है। लोगों के हार्ट में हार्ट बीट, इसके हार्ट में म्यूजिक बीट है। खतरनाक है जिसका W वेरिएशन। पॉपर प्रदेश का राजा बाबू रंजीत झा, और जहां झा वहां झा, इनके साथ कोलैब करने आ रही हैं 2 times विनिंग कोरियोग्राफर, the most beautiful, one of my personal favorites, Vartika Jha।
का बेस पॉपिंग है, तो अगर वो साथ परफॉर्म करते हो शायद से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वर्तिका ने ओवर पावर कर दिया रंजीत को तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है उसके लिए। रंजीत, किसी पे भरोसा है जो 5 दे सकता है तुमको, दोस्ती में या डांस देख के कुछ भी? आई थिंक हितेश भाई, अगर मेरा परफॉर्मेंस फुल जैसा हमने रेडी किया वैसा अगर प्रेजेंट हुआ तो। रंजीत और हितेश इतने अच्छे तो भाई है नहीं, मैंने तो नहीं देखा। यहीं पर गेम बिगड़ जाता है। जस्ट से आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। Hit the floor in 3, 2, 1. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm भाई मैं तो इतना खुश हूं कि ये लोग ने मेरे से टिकट का पैसा नहीं लिए। मैं सिर्फ इसको ही देख रहा था, ठीक है ना, और क्या कर रहा था ये। बहुत मजा आ गया मेरे को भाई। मैं तो लायक ही नहीं हूँ जज करने के, बट मैं अगर जज करने का लायक होता तो मैं ये टेबल ही तोड़ देता। हम कुछ बोलने से पहले हमारे कम्युनिटी के पास जाए। हाँ, सबसे पहले अपन गुजराती बाबू तुम्हारे पास आओ। हितेश भाई। रंजीत, किसी पे भरोसा है जो 5 दे सकता है तुमको? हितेश भाई, हितेश भाई। यस हितेश भाई, कैसे? अरे बैठो भाई। अरे बैठो हितेश। सर ओह माय गॉड, ये क्या? हितेश, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, इधर है रंजीत। बाबू, लेकिन रंजीत वहां पे है। हितेश, मुझे ये पावर नहीं चाहिए, मुझे आपको देनी है पावर। क्यों? अगर मैं किसी को 5 दूंगा तो मुझे किसी को 2 भी देना पड़ेगा। अरे वही तो चाहते हम लोग। वही तो चाहते हम लोग। यू नो व्हाट हितेश, ये फॉर्मेट है। आई नो बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन क्या करें, आपको करना ही है। कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग ये चीज़ फील कर रहे हैं, बट
वी कुडंट स्पीक. मुझे ऐसा लगा कि हितेश को उसका गिल्ट खा रहा है क्योंकि भाईचारे के चक्कर में वो अपना दोस्त नहीं खो सकता. आई डिडंट वांटेड हिस्ट्री टू रिपीट इटसेल्फ. दैट्स व्हाई आई वाज लाइक शिट यार मैं ये नहीं कर सकता. Hitesh, you can do it. करेगा, तू कर सकता है. चल, just be honest यार. तू डांस आर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग. Don't think so much. Don't think so much. आजा 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 आजा. हाँ, You're real, keep it real. चलो, let's go. Yes. हितेश तू टाइम ले ले, ठीक है? हाँ. हेक्टिक भाई. क्या बात है, 3 चलो, नंबर दिए very इन्होंने. Let's go. रूल्स ब्रेकर. देख ये होती है ना बात. ये. रेडी है? बोले हेलो भाई. बोलने का नहीं, डायरेक्ट देने का. कितना रूल्स ब्रेकर्स ने दिया? 3. ओके. यस मैम. 3. यस. 3. अगेन 3. आपने 3 क्यों दिया? आप थोड़ा डिटेल में रीजन बता सकते हैं? रंजीत का परफॉर्मेंस अच्छा था, पर जो वो परफॉर्म करता है उसका मूव थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है. नया एलिमेंट्स नहीं है इसलिए. आप अग्री करते हो हितेश इससे? आप अग्री करते हो इससे? यू डोंट अग्री. ओके. रंजीत. मुझे नहीं लगता, क्योंकि यामोन का ज़्यादा रिपीटेटिव दिखता है. आई थिंक सब लोग ने देखा होगा. तो वो शायद से मुझे बोल रही है, बट उसे खुद को देखना चाहिए. मैंने इसके चेहरे पे देखा अभी कि 3 ज्यादा दे दिया. चलो भाई, वो चिल भाई. यहाँ पे शॉर्ट नहीं हो चुका सर? आपको नहीं लग रहा कि सबने दिए तो सब सेफ खेल रहे थोड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभांकर को फॉलो कर रहे हैं. चलो कोई नहीं, अमन कुणाल. हमको लगता है कि रंजीत अपने परफॉर्मेंस के टाइम पे उसको ओन नहीं कर पाया. वो इतना इम्पैक्टफुल लगा नहीं जितना वो इम्पैक्टफुल हो. ग्राफ बहुत अच्छा था. हितेश 4. नॉट बैड. हमारे आर्टिस्ट से रंजीत को मिले हैं टोटल 18. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब हिप हॉप आर्मी आपकी बारी है. राजा क्रेजी भाई. तुम जैसे तुम लोग करते हो बीट्स पकड़ना, जितने भी एलिमेंट्स तुम लोग पकड़ते हो इन लोग, दे आर क्रेजी. बहुत मतलब मैं कब से देख रहा हूँ लोग. यू गाइस आर अमेजिंग गाइस. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. एक चीज आई थिंक हम सबको खटकी है, जहाँ पे थोड़ा सा सिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था. सो आई थिंक उसी के लिए हम 1 मार्क्स. अगर वो होता ना भाई मैं 10 दे देता भाई, है ना? 9. थैंक यू, थैंक यू सो मच. इतने सारे कमाल के मूव्स थे. आई लव दैट होल स्वाइप और थ्रेड जो आपने किया है. आई लव दैट. बहुत सारे ऐसे आपने किया है अंदर बाहर, जब आप एकदम वो स्टकाटो मूवमेंट जो आपने किए हैं. बहुत आई लव्ड इट. आई लव द फैक्ट जब आप यहाँ पे आए. आई जस्ट वांट टू से, फॉर मी दिस इज हिप हॉप. You all get. Oh sorry, इसमें 10 नहीं है. जिस तरीके से आपका रॉक एंड बाउंस वाला वेरिएशन था बिगिनिंग का, अमेजिंग. और अंतरे में जो बीट किल सेक्शन था, दैट वाज अमेजिंग. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. यस ऑफ कोर्स हम हिप हॉप की बात कर रहे हैं, और आज आप तीनों ने आज इस मंच पे जो दिखाया वो प्योर हिप हॉप था. लवली परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग. छोटा मोटा मुझे भी लगा, इसलिए मैं भी 1 मार्क काट रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर. जजेस और हिप हॉप आर्मी की तरफ से मिला है 28 स्कोर. कम्युनिटी ने दिया है 20. टोटल स्कोर होता है 48. तो लीडर बोर्ड के हिसाब से हम लोग हैं अभी सेकंड पे, जो कि हमारा स्कोर बताता है 48. और वो हमें ये भी पता है कि वो एक्चुअल 48 नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा का था हमारा, पर ठीक है, एक्सेप्टेड. 48 is still less than 52. My brother is still on top. Bhaichara is still on top, brother. Thank you Aman and Kunal. Please, thank you Nepo. Thank you. Have a seat, guys. 4 परफॉर्मेंसेस के बाद अब वक्त है लीडर बोर्ड का. पावर्ड बाय ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन. हितेश with 52, Aman Kunal with 48, Ranjit with 45, Yamon Lang with 38.
सबको याद दिला दूं कि जो बनेगा आज हमारा थर्ड फाइनलिस्ट उसे मिलेगा बिल्कुल नया Realme GT7। अब आ रहे हैं वो जिसका फुटवर्क इतना तेज है, हिप हॉप में उसके नाम का क्रेज है। फुटवर्क का पायनियर लिल पुल और उसके साथ कोलैब करने के लिए आ रहे हैं द चैंपियन डांसर और विनिंग कोरियोग्राफर ऑफ डांस रियलिटी शो द वन एंड ओनली रक्ति। क्या लग रहा है क्या होगा अब आखिरी परफॉर्मेंस से कौन क्या स्कोर देने वाला है? कुछ भी हो, बस दिल से नाचना है। दिल से नाचना है। हाँ, बेस्ट देना है अपना। देयर इज नो चांस कि जेरी मेरा स्कोर बीट कर पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फकिंग पॉइंट्स वाला पैटर्न। सबने अगर मुझे हाईएस्ट पॉइंट भी दे दिए तो मैं फिर भी हितेश का स्कोर मैच नहीं कर पाऊंगा। तो ये आज का लास्ट परफॉर्मेंस है रक्ति मंजरी, और इस वक्त लीडर बोर्ड पे हितेश सबसे टॉप है 52 पॉइंट्स के साथ। क्या जरी आगे जा पाएगा? लेट्स सी। Hit the floor in 3, 2, 1. कौन उठा दिया भाई इतना सुबह सुबह? कौन उठा दिया यार? टाइम क्या हो रहा है यार? तेरे गुलाब के गाने मेरे चुभे चुभे, तेरी बंदी मेरे शोबे कैसे कूदे कूदे। सुबह सुबह उठा सुबह सुबह सीधा थूके थूके भी तो पहिया पे लगातार रुके उठे या फिर रावत सब बंदोरे फूके फूके। मुझे देख के दिल इनका रुके रुके, मुझे मिलने के बाद सीधा टूटे फूटे। आला बाबा से कॉल बेला फूटे फूटे। अरे गाने कभी मुझे बच्चे पूछे चालू में रावत सब बच्चे पूछे। ताना जाना तूने मेरी जाने जाना आता नहीं साला गाना गाना हूँ नहीं लड़का दीवाना वाला फोकट लोग में नहीं आना जाना मानता हूँ मैं कमीना साला फिर मुझे कमीना पाला गाना गाना गा तू मेरे संग जीत पाप का दम दम भूल के तुम्हारे सारे गम नाचू मेरे संग संग रैप का मेरा ये सत्संग अलग ही मेरी सरगम खुद का मेरा ये रंगमंच रैप का रंग छोड़ दास तेरे करी का करूँ मैं मूत्र विसर्जन। क्या बोल रहे 99 में आया कि एकदम सुबह सुबह उठ गए भाई? हाँ यार सुबह सुबह उठ गया यार। क्या कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह भाई? This is unfair. The world is not ready for this performance and for this show. भूल जा अपने कम्युनिटी के लिए, अभी के लिए कार्ड भूल जा, हमको दे। You can take the cards and shove it out. वहां पे बैठ के जो अकड़ में वो रिव्यू दे रहा था ना, 1 क्योंकि ऐसा लगा, 5 क्योंकि ये हिप हॉप है, तू डिजर्व करता है ऐसा बात करना। इसके लिए मैं 4 लाइन बोलूंगा कि खड़ा हो जा हिप हॉप तेरे बाप का ना घर, जगह खाली कर वरना डबल भाड़ा भर। मोस्ट वांटेड इन द गेम है इनाम मेरे सर,
मैं भेड़िया शिकारी और ये जंगल मेरा घर। भाई ने हिप हॉप तो कर दिया है, अब आप लोगों के पास जो भी बचा कुछ है उसमें से आपको शर्मिंदा होकर बड़े वाले स्कोर देने पड़ेंगे। यस मैडम प्लीज। ओके क्या रीजन है कि बचा यही है? जो वो लोग फुटवर्क करता है, मतलब क्रेजी। क्या बात है? कैप्टन मेरी जान, आई एम सॉरी मेरे पास 5 नहीं है, आई हैव ओनली 3। यस खजांची सर। अरे वो दे दे, क्या ही देगा? ऐसे ले लो, 1-0 ले लो। चलो देखो गेम खेलोगे तो एडवांटेज है पर साथ में डिसएडवांटेज भी है। तो तुम्हारे पास अभी मार्क ही नहीं बचे इतने अच्छे परफॉर्मेंस को देने के लिए, तो तुम्हारी गधा बनती है ये। तुम लोग ने अपना गेम प्ले कर लिया, अब रिग्रेट होने का नाटक मत करो। सबसे हाईएस्ट आपके पास यही है रंजीत। ये 4 नहीं देता तो मैं 3 देता। इससे ज्यादा होता तो हम लोग देते भाई, पर ये लास्ट है क्योंकि ऐसे ऑल आउट डांसर्स के लिए भाई फुल। लिलपुल कम्युनिटी की तरफ से आपको मिलते हैं 21। हिप हॉप आर्मी ये लो 10 मार्क्स। It is a banger performance. जजेस और हिप हॉप आर्मी ने लिलपुल को दिए हैं 30 स्कोर और कम्युनिटी ने दिए हैं 21 स्कोर। लिलपुल का टोटल स्कोर होता है 51। हितेश से नीचे है, पर वो मेरे को लगता है सेंस नहीं बनाता क्योंकि रेमो से वाज नॉट सेटिस्फाइड कि हितेश को जो मार्क मिले। आई थिंक जेरी को कर्मा हिट हो गया कि उसने मुझे जो 1 मार्क्स दिया था, वो 1 मार्क्स की वजह से वो मेरे से पीछे होगी। इन लोग के भाईचारे के चक्कर में मैं थर्ड फाइनलिस्ट नहीं बन पाऊंगा, तो इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम एज अ कम्युनिटी हम उसे उतने स्कोर्स नहीं दे पा रहे, उतने पॉइंट्स नहीं दे पा रहे जितने वो डिजर्व करता है, जबकि वो पहला बंदा है जिसने पूरे इस एपिसोड में बैंगर लाया है और सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसने। सब लोग आ जाओ स्टेज गाइस। तो देखिए भैया, लीडर बोर्ड के हिसाब से तो अभी टॉप स्कोरर हितेश है। इसका मतलब कि हितेश हमारा थर्ड फाइनलिस्ट है। बोल दें इनको। ये एटीट्यूड देख रहे हो, समझ रहे हो कुछ इसके बारे में? अब क्या हो जाएगा सर? मैं सिर्फ ऐसे ही रोस्ट करने थोड़ी आया था इधर, मैं भी तो स्कोर देने का थोड़ा अधिकार तो रखता हूँ ना। What was that? Give it up for Rule Breakers and Beagle Bobby! Outstanding, and this is what I call hip hop.
Bobby, you were outstanding. जैसे आपने पहला वहां पे जंप लिया, यहाँ पे मलाइका ने जंप लिया था, किसी ने नहीं देखा. मतलब मैं डर गई. Oh my God. You are fantastic. Thank you, sir. Bobby. I want you to represent India at every stage all over. All over. You're fantastic. That's it. I think the entire time, Malaika and I, our mouth was open and we were just watching you in shock. I've seen these boys perform earlier. They're full power. But you made it like they were an extension of you. You just walked in full energy, and it takes a lot to be able to command that much power on stage. Thank you. रूल्स ब्रेकर्स के साथ कोलैब करके आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्रेकिंग अक्सर मतलब स्ट्रीट से आया है और स्ट्रीट से स्टेज का सफर जो ब्रेकिंग ने किया है, दैट इज इनक्रेडिबल एंड मोर पावर टू देम, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट करना इज वेरी बिग थिंग फॉर अस बिकॉज आई फील दैट ब्रेकिंग इज वेरी अंडररेटेड एंड यस, उनके साथ बहुत ही मजा आया. रूल्स ब्रेकर्स, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके साथ खड़े होके, बिकॉज तो हम बहुत टाइम से ऐसे सोच रहे थे कि कभी ऐसा हम लोग का भी ब्रेकर्स होते ना यार, हमारे क्रू में बीगल्स की कमी है. तो थैंक यू सो मच हिप हॉप इंडिया कि बीगल्स आई कि बीगल्स की भी कमी पूरी हो गई. थैंक यू सो मच गाइस. हमने हिप हॉप के इतने सारे एलिमेंट्स हमने उनके बारे में हमने बातचीत की. आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम भूल गए, हमने बात ही नहीं की, और वो है हिप हॉप स्टाइलिंग, हिप हॉप क्लोथ्स, हिप हॉप का एक फैशन जो रहता है, राइट? एंड आई थिंक दैट्स बिकम सो पॉपुलर. इट्स वर्ल्ड ओवर. फैशन प्लेज a very important role and a part in the whole hip hop culture, right? Yeah, you're absolutely right. Yeah, you know, being an artist, and what I would share with you guys is there's so much room for commerce, for growth. You know, as an entrepreneur, the more you guys work on your expression of who you are, the more you become a brand, and the more you can push hip hop forward through that brand. Talking about commerce or you know the entrepreneurial side of it, मनीषा, मैंने आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हिप हॉप इंडिया शो में हूँ और यहाँ पे हमारी मलाइका मैम है जो कि एक बिजनेस वुमेन भी है, और इंडिया में और भी बहुत सारे बिजनेस वुमेन हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है. तो इन सबको देख के मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे इस फील्ड से हट के मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूँ, लाइफ में कुछ और करूँ. आपको इतने सारे कमेंट्स मिले जहाँ पे सब आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको एनकरेज कर रहे थे, एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज विन फॉर ऑल द वुमेन. सो आई रियली सपोर्ट यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस एंटरप्रेन्योरल जर्नी ऑफ योर्स. मलाइका मैम, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया, कमेंट किया, लेकिन एक कमेंट किसी ने किया है जो कि बहुत स्पेशल है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप सभी को दिखाना चाहती हूँ. आपने इंस्पिरेशन जिससे लिया है टू परस्यू योर एंटरप्रेन्योरल ड्रीम, मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक दैट ड्रीम कम ट्रू. प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग द वेरी लवली गजल. Hi Ghazal, welcome to Hip Hop India Season 2. Thank you Malaika, thank you so much for having me. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे मंच पे आए हो. You truly are an inspiration to so many women out there. Manisha is super inspired, so thank you. मैंने आपका जर्नी देखा है, आप मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो. इवन मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो लाइफ में बिजनेस शुरू करना चाहती हो, आप उनके लिए एक मिसाल हो कि अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए MBA की डिग्री होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन, चाहत, इबादत और शिद्दत चाहिए. You know, I just want to say that I've been following this show very closely.
एक चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप और हिप हॉप में कॉमन है वो है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना और अपने आप को ऑनेस्टली और ट्रूली एक्सप्रेस करना, विच इज़ नॉट ईजी. सो वो मेरा भी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था जो मैं लेके आ रही थी. एंड all of these wonderful artists here are doing exactly the same. Dream big and don't let anyone tell you कि आप नहीं कर सकते हो, and that is what this platform gives. बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है जैसा मनीषा ने बताया. सो आई वुड लाइक ऑल टू सी दैट जर्नी. गजल हमेशा कहती है, think about the solution before talking about the problem. मेरे को लगता था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिग्री बहुत जरूरी है, बट यहाँ काम करने के बाद मेरे को समझ में आया है कि इट्स द राइट इंटेंट, द मोटिवेशन एंड द स्किल सेट दैट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट. एंड गजल इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट. यार गजल हैज ऑलवेज बीन अ गो गेटर. बात सिर्फ हमारे बच्चे की थी. उसको एलर्जी हुई थी बाहर के प्रोडक्ट से, उन प्रोडक्ट्स में जिनमें कि केमिकल्स ऐसे यूज होते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं. बट वो वहां पे नहीं रुकी. एंड शी सेड कि यार ये प्रॉब्लम्स लाखों पेरेंट्स की, एंड अगर सॉल्व करना है तो सबके लिए सॉल्व करेंगे. और यही जज्बे की वजह से शी डिसाइडेड टू जस्ट सॉल्व दिस. द वे शी इज बैलेंस्ड आवर होम एंड दिस कंपनी एंड बिल्ड सम अमेजिंग ब्रांड्स व्हाइल रेजिंग सच अमेजिंग चिल्ड्रन इज सो इंस्पायरिंग. इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ बिजनेस नहीं बना रही हैं, नए रूल्स लिख रही हैं, नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं. और ये प्रूफ है कि आपके सपनों को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है. उन्हें सिर्फ हिम्मत, पैशन और एक्शन चाहिए. और एक बात कहूं, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल हिप हॉप की तरह है. अपनी आवाज उठानी पड़ती है, अपना रिदम पकड़ना पड़ता है और दुनिया को दिखाना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं. To all the kids at Hip Hop India, I see you. तुम्हारे पास वो सब है जो आपको चाहिए. बस खुद पर बिलीव करो, हार्ड वर्क करो और अपने सपनों को पूरा करो. The world is ready to see you shine. गजल मैं तो हुआ ही हूँ इंस्पायर, बट आपके थ्रू मेरे ख्याल से ये देखने के बाद तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे. जब हम शो देखते हैं, the determination that they have to show what they truly, you know, their true potential and वो क्या लेके आते हैं स्टेज पे, I think kudos to you guys. आप लोग पूरे देश को इंस्पायर कर रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा. एक हाथ करके अभी तक 3 बैटल्स हो चुकी हैं और 3 बैटल्स के विनर मैं याद दिला दूं. पहले लिटिल पूल, दूसरे हेक्टिक, तीसरे अमन कुनाल. सो गाइस गिव इट अप फॉर देम. विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज देयर आर नो स्कोर्स. तो आज के लिए जीतना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. कौन बचा है? हमारे टटिंग के माएस्ट्रो, हमारे टटिंग के राजा हितेश और उनके बाजू में बैठे द कूल, द हैंडसम नॉर्बू. क्या एलिमेंट यूज करना चाहती हैं आप? Before there was DJ spinning for us in our ciphers, we couldn't exist without the beatboxer. Shout out though for Realme Hip Hop India 2. Co-presented by Sprite, co-powered by Tuborg Zero Packaged Drinking Water. नमस्ते, मेरा नाम है सनी और मैं एक रैपर हूं. पहले मैं ऐसे बात करता था, लेकिन फिर मैंने ज्वाइन किया अदनान इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस और अब मैं ऐसे बोलता हूं. Hey, what's up? No, it's all good. Thank you. Yeah. Give it up for आधा पका नान अदनान. अदनान, यार एडवांटेज है तुम्हारे पास आज, है ना? कॉइन है एक जो मैंने दिया है. करेक्ट. क्या लगता है, क्योंकि आपको कॉइन दिया है, इनका दिमाग चल रहा होगा, हो सकता है कि बटरिंग करने के चक्कर में आपको ज्यादा कॉइन्स तो नहीं दे देंगे लोग? मेरे को नहीं लगता सर ये वाला.
जितना मैं उनको जानता हूँ और जितना वो शायद मेरे को जानते हैं, कुछ ज्यादा ही ब्रूटली ऑनेस्ट है सब लोग। स्टार्ट करने से पहले आपके जो ये ट्रॉइका है यहाँ पे, आपको क्या लगता है कितने कॉइन्स मिलेंगे हितेश और शुभांकर से? 5 के ऊपर मैम। इतना कॉन्फिडेंस, 10 तो कॉइन है, 5 आपको दे देंगे। ओ 5 कॉइन अगले भाई को देंगे, ठीक है समझ गई मैं। चलो देखते हैं आपका ये प्रेडिक्शन सही है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। यस सर। रेडी अदनान, कम ऑन, लेट्स डू दिस। मेरे को एक्चुअली किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक कॉइन है, मेरे पास मेरे भाई लोग हैं। Hit the floor in 3, 2, 1. वो भी क्या पल जो तेरे संग काटे, जो कारवां तेरे संग बना। अरे भाई एक मिनट मैं आता हूँ ना थोड़ा। ओ मैं करता हूँ ये काम तुम्हारा आज। ओके सर, बढ़िया। आइए। देखो आप ऐसे याद है, हम पोलाइट बॉडी लैंग्वेज, और फिर दोस्त के पास है ना, दोस्त, या फिर एक ऐसे इंसान के पास जो कैच 22 सिचुएशन में। आपको तो इन्होंने कुछ नहीं दिया था, तो अब आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल फेयर होके बोल रही हूँ कि जो वो स्टेज पे खेलते हैं म्यूजिक के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए मैं 1 पॉइंट दूंगी उनको। ट्रस्ट मी, मेरे को पता था कि वो मेरे को एक ही कॉइन देगी क्योंकि एक वो डिप्लोमेटिक खेल रही है, उसको कॉइन्स बचाने अपने। इतना सही परफॉर्मेंस नहीं था, बट 1 कॉइन दे रही हूँ मैं क्योंकि उनके पास ब्लैक कॉइन है, थोड़ा हम भी सेफ होकर खेलें। पर मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ आपके साइड में बैठ के। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है मुझे ये पूरा। मैंने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर बैठ पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। अदनान तेरी वजह से बैठे बनता है, तू ले ले 10 कॉइन। सोच समझ के देना, वो ब्लैक कॉइन जो दिया है ना, वो एडवांटेज लग रहा है, वो उल्टा भी पड़ सकता है सर, बट हम लोग जेन्युइनली फेयर, सोच समझ। यस सर, एकदम सोच समझ के हम लोग कम्युनिटी है अपन एकदम। यस सर, एकदम ऑनेस्टली मैं ये करूंगा। हिप हॉप में सब कुछ रियल होता है, लेट्स बी रियल। सबसे पहला कॉइन मैं दे रहा हूँ अदनान को क्योंकि उसका शोल्डर अभी तक हील नहीं हुआ है और वो उसके साथ परफॉर्म कर रहा है, अभी भी अपना फुल आउट दे रहा है इसके लिए। ओके। दूसरा कॉइन मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद आया। तीसरा कॉइन मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक पे अगला बहुत अच्छा नाचिल है। चौथा कॉइन मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तेरी वजह से आज रोहित सर मेरे बाजू में बैठे हैं। That's it.
4 कॉइन दिए सही में। ऐसे 4 वाली तो परफॉर्मेंस थी भी नहीं, 2 दे देते चलो भाईचारे के नाम पर। आप जब वो डाल रहे थे ना, और आप जो रीजन बता रहे थे इतने स्टूपिड लग रहे थे ना, लग रहा है 30 साल का नहीं 3 साल का बच्चा ऐसे दे रहा है। हम ये नहीं है, हमको सबको समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। कैसा लगा? बहुत मस्त, मुझे हर बार इसका परफॉर्मेंस बहुत सही लगता है बिकॉज मैं इसके स्टाइल से बहुत कनेक्ट करता हूँ, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। कितने कॉइन दोगे? I'll give him 4 coins because थैंक यू सो मच। all मेरे दिल से भाई। थैंक यू सो मच भाई। इतनी फेयरनेस की बात करते हो, कम्युनिटी की बात करते हो, एंड अब ये गेम प्लान बना रहे हो। नवीन आओ मेरे बाजू में बढ़ियो। इट्स टाइम नवीन। कॉइन्स देने का है। आप कितने कॉइन्स दे रहे हो नवीन? 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यो उसके दिमाग में भी चल रहा था कि मैं 3 कॉइन दे देता हूँ, शायद एंड में मैं गिरूं और अदनान भाई मुझे उठाए। अदनान भैया के परफॉर्मेंस के बाद मेरे को पता चल गया था कि आज बहुत सारे गधों को अपना बाप बनाना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी मूवमेंट में, ओके। तो इसलिए 2 थैंक यू सो मच। 2 कॉइन। थैंक यू सो मच। जनाब के पास ब्लैक कॉइन है, तो थोड़ा सेफ प्ले तो हमें भी करना है, तो 1 कॉइन थोड़ा कम लगता है उसके लिए, तो हमने 2 कॉइन्स दे दिया। रूल्स ब्रेकर्स कितना कॉइन्स? तालियां। 2 थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 1 कॉइन। थैंक यू सो मच। 1 कॉइन। मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच ब्रदर। सर गोल्ड कॉइन देना चाहेंगे आप? अगर कोई परफॉर्मेंस ऐसा हुआ कैसा, तो फिर मैं ये दे दूंगा, ठीक है? गोल्ड कॉइन पे मेरा ध्यान नहीं है क्योंकि एक तो आई हैव दिस, दूसरा आई हैव माय ब्रदर सेविंग माय एस फॉरएवर। अदरवाइज अदनान, यू आर अ फैंटास्टिक डांसर। थैंक यू सो मच। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आपका स्टाइल है। कब आप लिरिक्स पकड़ते हो, कब आप बीट पकड़ते हो, उसका जो ट्रांजिशन है आपका, वो बहुत कमाल है। एक आपका म्यूजिकलिटी एक अलग ही तरीके से मुझे दिखता है जब आप डांस करते हो। आपका जो गाने का जो ब्रेकडाउन है वो बहुत कमाल का रहता है। कैसे आप तोड़ते हो कि इसमें मैं लिरिक्स पकड़ूंगा, इसमें मैं बीट पकड़ूंगा, इसमें मैं वापस लिरिक्स एंड बीट पे खेलूंगा। दैट इज अमेजिंग द वे यू डू इट। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। एक जो मुझे अदनान का लगा इज वो यहाँ से भी नाचता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जो एक्सप्रेशंस आते हैं ना, आई थिंक वो और निखार देते हैं आपके परफॉर्मेंस को। Thank you so much, sir. यू नो कि आप फेस एक्सप्रेशन भी उस बीट के साथ छोड़ते हो ना, विच इज वेरी रेयर। उतना मैंने नोटिस किया कि ये यूनिक है यार। थैंक यू सो मच सर। पिछले बार जो आपने कनेक्ट किया Yes, ना, yes, yes. आई फेल्ट वो कनेक्शन में थोड़ी वहां पे वाज मिसिंग, बट अदरवाइज एवरीथिंग एल्स वाज सुपर। थैंक यू सो मच मैम। तो अदनान को कम्युनिटी की तरफ से मिले हैं टोटल 19 कॉइन्स। चित्राक्षी के 4 पॉइंट्स, अदनान के 19 पॉइंट्स, काफी फर्क है। तो शिलोंग की गलियों से अपने एफ्रो से अफरा तफरी मचाने आ रही हैं, प्रेजेंटिंग द आफत एफ्रो क्वीन यमोन लैंग। यमोन, 2 परफॉर्मेंस हो गया है और अदनान अभी लीड कर रहा है, तो तुमको क्या लगता है, तुम उसको बीट कर पाओगी? I'll give my best to beat him. क्या लगता है चित्राक्षी कितना देगी? फेयर प्ले करेगा तो हाँ, तो देगा? हाँ तो देगा। 5 देगा। ओके। मैं फेयर होकर भी नहीं तुझे देगा और अनफेयर होकर भी नहीं देगा। जा। यमोन, ऑल द बेस्ट। Thank you. Hit the floor in 3, 2, 1. कैसा जादू किया, किया किया बोले मत वाला किया। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आ कर ले नशा। दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की बरसात नशीली, तू भी आ कर ले नशा। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान,
फिटनेस की जरूरत ना आपको है मेरे से ज्यादा, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है, भिजवाऊं क्या? नवीन, सबसे पहले तू। यमन बहुत अच्छा डांस करती है, तो आज देख के बहुत ज्यादा यमन बहुत अच्छा डांस करती है। ये है अच्छा डांस। तेरी चॉइस है, तू अभी भी 2 दे सकता है। हाँ हाँ, तो मैं दे सकता हूँ ना 2। अरे हाँ, बेचारा दे ही सकता है, ऑब्वियसली तेरे सिक्के जहाँ उछाल। बेचारा। थैंक यू सो मच नवीन। नवीन एक नंबर का चोमू इंसान है। अभी शायद से और अगर उसे बोलते वो 3 भी उठा देता तो पता नहीं क्या कर रहा है, वो उसे खुद ही नहीं पता। रुद्राक्षी, कितने कॉइन्स देना चाहोगे? आपने जो पहले बोला था कि अगर फेयर होगी तो वो 1 पॉइंट तो देगी, ठीक है, तो उसको मैं क्लियर कर दूं, मैं अभी भी फेयर होंगी, मैं आपको 1 भी पॉइंट देना नहीं चाहती हूँ। वहाँ पे अगर वो उसे कॉइन दे देती तो वहाँ पे वो अच्छी बन जाती, बट उसने दिमाग ही नहीं चलाया और वहाँ पे और उसने अपना गुस्सा और दिखा दिया। आज के जो भी हम लोग जो भी यूथ हैं कि कितने सेल्फिश हो गए हैं कि अगर किसी ने हमें बुरा बोल दिया है तो हमें रिवेंज लेना ही लेना है किसी से। मैं चाहूंगी कि मेरे को रिपीटेटिव बोलने से पहले आप अलग चीजें ट्राई करना अगली बार, जैसे कि पॉपिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, फिर मैं देखूंगी अलग क्या दिखता है आपको। आई कॉल दिस बेसलेस बीफ। यू वोंट अंडरस्टैंड कि मतलब हम कौन सा स्टाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यू कैन सी कि ये हिप हॉप शो है, ऑब्वियसली अपना स्टाइल रिप्रेजेंट करेगा। हमको पता है आप बच्चे अभी, सो आई वांट यू टू ग्रो। कम्युनिटी में कोई बच्चा बच्ची होता ही नहीं है, डांस के बेसिस पे करते हैं ना। ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कीप इन माइंड कि हमने गलती कर दिया 1 पॉइंट देने के लिए आपको। आई शुडंट डू दैट। ये जब यमन ने बोल दिया तो मैं उसको देखा और मैंने बोला बोलने लगी। फायर ब्रिगेड बुला लो, दोनों अंगार उगल रहे हैं यहाँ पे। कैट फाइट बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गाइस, कम्युनिटी बैठ जाइए, ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इसमें ज्यादा मजा आता है।